सोना जो है बड़ा ही बेनिफिशियल होता है आपके शरीर में। पसीने के साथ सारे टॉक्सिन्स और गंदगी निकलती है शरीर से। They say sauna is very good for your health. All the toxins come out along with the sweat. तो ये परमेश्वर के भवन का जो सोना है, सारा कैंसर, सारे ट्यूमर, सारी बीमारी आज पसीने के साथ निकल रही है बाहर यीशु मसीह के नाम में। So this is the sauna of God's house. All the cancers, tumors, every sickness is coming out along with that sweat. Amen. So आपका पसीना वेस्ट नहीं जा रहा। So your sweat is not going to be wasted. आप प्रभु के भवन में आए हो। You're in the house of God. Amen. उसका वचन कहता है कि यदि तू मेरे किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर एक गिलास पानी भी पिलाए मेरे नाम से, तो भी अपना प्रतिफल न खोएगा। His word says even if you serve a glass of water to one of my people, you will not lose your reward. Amen. तो आप जो यहाँ पे आए हो, गर्मी में बैठे हो, So those who are here sitting in this heat, हेवनली सोना ले रहे हो, taking the heavenly sauna, आप अपना पुरस्कार नहीं खोने वाले। you are not going to lose your reward. पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी पसीना बहने दे। Yeah, tell your neighbor, let the sweat flow. Amen. Hallelujah. जो देखो प्रभु ने क्या बोला, See what the Lord said. जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो। As your faith, so shall it be done with you. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी दवाई खाई, There are वो so many मरकरी, वो लेड, वो टॉक्सिन्स अंदर ही है शरीर में। There are many people who have taken so much medicine and all the mercury, lead and toxins are inside their body. आज सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं यीशु के Today नाम। all the toxins are coming out in Jesus' name. Amen. परमेश्वर हर चीज से भलाई उत्पन्न करता है। God brings out goodness from everything in our life. जब मैं सोच रहा था प्रभु तेरे भवन में लोग बैठे हैं इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, I was thinking about it, Lord, your people are sitting in your house in such heat. तो अचानक मुझे ये थॉट आया, This is the thought that I got. सोना में जाते हैं लोग, People go to sauna. हाँ, इतना महंगा पैसे देते हैं, यहाँ पे फ्री हेवनली सोना। It is so expensive, they pay for it. You are getting free heavenly sauna here. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. सो केवल आज प्रभु जैसे हम टेस्टिमनी सुनते हैं कैंसर्स और ये ही चंगा नहीं करेगा, आज सारे केमिकल्स बैलेंस में आ रहे हैं। So today, not just all the cancers and all the stories we hear are getting healed, all the chemicals are coming back to balance. प्रभु एक हेवनली इक्विलिब्रियम ला रहा है आपके शरीर में। The Lord is bringing a heavenly equilibrium in your bodies. Amen. यानी आपके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं। That means your insulin levels are coming back to normal. आपके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु Your के नाम blood में। pressures are coming back to normal in Jesus' name. सारे केमिकल्स All the chemicals नॉर्मल हो रहे हैं। are coming back to normal. आज का दिन मैं उस अभिषेक के अंदर आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं, आज का दिन एक हेवनली रीसेट का दिन है आपके शरीर के लिए। I pray today is the day of a heavenly reset in your bodies in Jesus' आप name. समझते हैं रीसेट क्या होता है? You understand what is a reset? हाँ, हमारा फोन जब नहीं चलता, When our phone is not working, आप उसे जब सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, when you take it to the service center, तो वो रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स कर देते हैं। they restore your phone back to this factory settings. यानी जब बनाने वाले ने ये फोन बनाया तो जो सेटिंग उन्होंने रखी थी वापस वहां चली गई। Which means when the manufacturer manufactured your phone, the setting they kept, it has gone back to that. आज पवित्र आत्मा हर किसी के शरीर को रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग कर रहा है यीशु के नाम में। Today the Holy Spirit is restoring your bodies back to the factory setting in Jesus' name. यानी जिस सेटिंग के साथ परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है वो सेटिंग वापस जा रही है यीशु के नाम में। That means the settings with which God created your body to function, it is going back to that setting in Jesus' name. Amen. Amen. Not just healing, सिर्फ चंगाई नहीं, health. स्वास्थ्य. Not just healing, सिर्फ चंगाई नहीं, health. स्वास्थ्य. बोलो, मैं चंगाई से अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश कर रहा हूं। Say, I'm moving from health, I'm moving from healing into divine health. Amen. Amen. Hallelujah. मतलब sleep patterns restored, blood pressure restored,
शुगर रिस्टोर्ड, बोन मैरो रिस्टोर्ड, सारा जो कुछ है सर से लेकर पांव तक रिस्टोर्ड इन जीसस नेम। Everything from head to toe being restored यीशु के नाम में। आमेन। सो आज बहने दो, So let it flow. पसीना भी हम बोले प्रभु तेरी आत्मा बहे, मेरा पसीना बहे, सब बहे, जो बहना है आज इस जगह बह जाए। So say Lord, let it flow today. Your spirit, my spirit, whatever has to flow, let it flow. आमेन। मगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, आज का वचन बहुत 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 जरूरी है। But you do not let yourself be distracted. Today's word is very, very, very important for you. आमेन। और ये आज का जो वचन है वो आपके पिता का हृदय है आपके लिए। And today's word is your Father's heart for you. आमेन। सो एक सेकंड के लिए, For a एक second. सेकंड, एक मिनट के लिए For a minute, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद lift करो up your hands and close your eyes wherever you और are. प्रभु यीशु मसीह से बोलो, प्रभु मैं आज आपके उस महान और पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए आया हूं प्रभु। And tell the Lord, Lord, I have come to receive your great, mighty, and holy word today. वो वचन जो मेरे शरीर को पूरी रीति से चंगा कर देगा, That word which will completely heal my body today. वो वचन जो मुझे और मेरे परिवार को विनाश से बचा देगा, That word which will rescue me and my family from destruction. और वो वचन जो हमें दीर्घ आयु देगा। And the word which will give us long life. आज आप प्रभु से बोलो, प्रभु आज आप पर्सनली मुझसे बात करो। Tell the Lord, Lord, you speak to me personally today. Praise God, Hallelujah। खुश हैं आप आज के दिन? Are you happy today? हाँ, बिजली ना बिजली, ज्योति तो हम हैं यीशु के नाम में। Whether there is electricity or no electricity, we are the light in Jesus' name. Amen। So आज का जो वचन है ध्यान धरकर उसको सुनिएगा। So hear today's word carefully. Amen। मैं चाहता हूँ सब जल्दी से सेटल हो जाएं। I want everyone should settle down. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? चलें वचन की तरफ। Should we go into the word? मैं एक प्रार्थना करूंगा फिर हम वचन की I'll तरफ pray and चलेंगे। we go into the word. परमेश्वर पिता, Father हम God, आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। we come to you in the name of Lord पिता हम आपका Jesus. धन्यवाद करते हैं Father, we thank कि you आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। that you love us. You're a loving Father. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए प्रभु जो इस भवन में है, जो मेरे ऊपर है परमेश्वर। I thank you for that anointing on this house which is upon me. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आप मेरे मन में, मेरी सोच विचार में, मेरे मुंह में कब्जा कर लें। I thank you, Lord, that you would take hold of me, of my thoughts, of my mouth. हर एक शब्द जो मेरे मुंह से आज निकले प्रभु वो तेरी तरफ से अभिषिक्त किया गया हो। Every word that comes out of my mouth, Lord, let it be anointed through you. और प्रभु होने दे कि जो बंधुआई में आज वो छुटकारा पाकर जाएं। And Lord, let it be that whosoever is in bondage, may they be set free today. और हर एक व्यक्ति जो बंधन में है आज परमेश्वर पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए। And everyone who is in bondage, may they be set free completely और today. हर एक बीमार आज अपनी चंगाई लेकर जा रहा है यीशु के नाम And में। everyone who is sick is taking their healing today in Jesus' name. Amen. 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 भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें, verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है। हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे, Psalm 107 verse 20। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है। I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया। God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ। And even today, God is sending His word to you. Amen। और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ है
कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है। There is power in His word to fulfill what it's sent for. आमीन। कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to live, walk in healing? आमीन। देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं। It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा, Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे, We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के। Because everyone is in different levels of faith. आमीन। सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे। pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए। But God desires that his body would grow up and become mature. आमीन। और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई। And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. आमीन। कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते। And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी God, चर्च को, I will- अगर तुम मुझे चंगा कर देगा। God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो if हम you लोग so- एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। So we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back on पड़ोसी your को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे। उसका यही काम है, यही उद्देश्य है। Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. आमीन। सो आज मैं चाहता हूं इस चीज को आप सबसे पहले समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है। So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything, is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है। तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है, And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say, it's just a little bit flu,
You have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है, He's an intruder. वो घुसपैठिया है। हम देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं, You've seen how people intrude into, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और they आगे। keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है। This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए। It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको He gives you a symptom और फिर देखता है कि आप क्या करते हो, and then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing with तो it, और उसको बढ़ाता है, then he keeps increasing उसको it. और बढ़ाता है, Keeps increasing उसको it. और बढ़ाता Keeps है। increasing उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले। To kill you before time. सो आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है। So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए। So hear this carefully. हीलिंग चंगाई, इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक युद्ध है। और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए। And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल। Apostle प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए। आमेन। सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है। Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? वेपन्स। He has given us weapons, हथियार दिए हैं। मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं, But you know, there are so many believers. वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं। They live like civilians today. सुनिए, सिविलियंस You आम understand? नागरिक। You understand civilians? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको वो चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार हैं। those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश will try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाईटेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है। But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I'm saying? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं। Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं। 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5। हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है। It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है। Tell your neighbor there is a warfare. आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है संडे को। Sunday is your combat training day. आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है। This is your spiritual combat training day. आमेन। जैसे जो सेना में भर्ती होता है उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। Like those who join the army are trained how to use weapons. Today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. Spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। The weapons- इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है। Yeah, the English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? What does it इसका mean? मतलब
वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको, तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार। They're not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं, But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार है। But they are spiritual weapons. आमेन। Amen? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many people understand? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't? आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। Because the government does not want us to learn how to use weapons, so they teach the army how to use weapons. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। If God was going to fight all our battles, He would not have given us the weapons. But because we are in a warfare, He knows it. He has given us weapons to fight that warfare. Amen.